designs. Lecture number 3. I hope you all are fit and fine. In a previous lecture we see that हमने डाइस देखा था एंड रेक्टेंगल शेप का देखा था. So many shapes are there कि जिसको कितने कॉर्नर्स है, हाउ मेनी कॉर्नर्स दे आर एंड हाउ मेनी एजेस दे आर. कितने कॉर्नर्स और कितने एजेस थे वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. Now today we are going with the curved line and straight line. So first we start with this. In the following figures, tick those we have corners. Do these figures have curved lines? यानी those are the figures different. Tick those which have corners. सिर्फ वहाँ पे टिक करना है कि जिसको कॉर्नर है. So just we go with the first. Here is a two corners. Look at this. This shape is called semicircle. इसको semicircle बोलते हैं. So this shape has two corners. अच्छा, सिर्फ हमें यही देखना है कि कॉर्नर्स है या नहीं. If corners है then right, otherwise wrong. So this shape has corners. So I put here tick. Look at the second one. This shape has no corners. ये shape को corners है नहीं, तो उसका ऐसे ही छोड़ देंगे. Look at this one. So 1, 2, 3, 4. This shape has 4 corners. So I take here. Look at third one. So here is a corner, here is a corner, here is a corner. So I take here. यहाँ पे भी corners है. यहाँ पे corners नहीं है. This is the oval shape, simple, तो corner नहीं है. The next one, this is look like a staircase. वो staircase के जैसा दिख रहा है. So this is a, I put here right. And now the last one is, this is a simple circle. So यहाँ पे corners है नहीं. So वहाँ पे उसको ऐसे ही छोड़ देंगे. After that, using only straight line, can you draw a figure which has no corners? आप ऐसा कोई फिगर ड्रॉ कर सकते हो कि जहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, बट वो शेप में कोई कॉर्नर्स नहीं है. इज इट पॉसिबल? देन आंसर कम्स नो. जहाँ पे स्ट्रेट लाइन होंगी वहाँ पे अगर शेप बनाओगे आप, तो बट ऑब्वियसली कॉर्नर्स आर देयर, वहाँ पे कॉर्नर्स होंगे. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक अ शेप विदाउट अ कॉर्नर्स. आप जब स्ट्रेट लाइन पे यूज़ करो तो बट ऑब्वियसली वहाँ पे कॉर्नर्स बनेंगे. नेक्स्ट इज टेनग्राम. टेनग्राम. नाउ व्हाट इज टेनग्राम? टेनग्राम क्या है? The tangram is an old Chinese puzzle. From the pieces of the tangram we can make many shapes of animals, peoples and things. This is a old Chinese puzzle. इसको क्या करना होता है? जस्ट ड्रॉ करना होता है, सिंपल, एंड देन कट इट आउट एंड अरेंज इट. उसको ऐसे अरेंज करो कि उसमें से कोई पीपल बने, या तो कोई कैरेक्टर बने, या तो कोई एनिमल बने. सो दिस इज़ अ सिंपल पजल, नथिंग एल्स. ये ओरिजिनली ये चाइनीज पजल है. Now at the back of the book you will find a square like the one in this figure. Cut it out carefully and cut the pieces. This set of 5 pieces is called 5-piece tangram. Use these 5 pieces to make the following figures. यानी वहाँ पे जो following figures, यानी यहाँ पे जो figures दिए हैं, I can show you here. These are the 5 figures. आपको क्या करना है? Just you have to draw it out and cut it out and arrange in a different ways. So वहाँ पे कुछ अलग अलग character या तो animals बनेंगे. After that, this is a 5-piece of tangram. ये 5-piece of tangram है. Here is a one more given 7-piece of tangram. 7-piece का tangram भी दिया है. And these all pieces are in geometrical shape. वो geometrical shape में होंगे, like square or rectangle or diamond shape or triangle, whatever. But it should be in a geometrical shape. Now use this triangle. Look at this in 5-piece of tangram. Here are the नंबर 2 एंड नंबर 5 इज द सेम ट्राइंगल. वो नंबर 2 और नंबर 5 का जो ट्राइंगल है वो सेम ट्राइंगल है. जस्ट यू हैव टू यूज दिस ऑल पीसेस एंड मेक अ डिफरेंट थिंग्स लाइक पीपल और एनिमल. दैट्स इट. नाउ 7-piece of tangram. Again here are the diamond shape. We have a triangle shape here, diamond shape here, square shape here, and just make it out the different things from there. Now we comes with the next topic, weaving pattern. Now what is weaving pattern? Golu and Binu went to the market with their aunt. गोलू एंड बीनू वो दोनों बाजार जा रहे विद देयर आंट, आंटी के साथ. दे शो मैनी रग्स. वहाँ पे वो रग्स देखते हैं. नाउ व्हाट इज रग्स? RUGS. व्हाट इज रग्स? रग्स इट मीन्स द सिंपल वे कारपेट, जिसको हम हॉल पे बिछाते नीचे, जिसको बोलते हैं कारपेट. सो उसको RUGS रग्स भी बोलते हैं. Now there are so many different geometrical shapes are there in a rugs. यानी कारपेट में बहुत सारी geometrical shapes थे.
जैसे विच जियोमेट्रिकल शेप्स कैन यू आइडेंटिफाई इन दिस बॉर्डर, यानी जो जियोमेट्रिकल शेप्स यूज़ होते हैं क्लॉथ्स में, या तो जनरली कहाँ पे यूज़ होते हैं, कारपेट में यूज़ होते हैं, या तो कर्टेंस में यूज़ होते हैं, या तो बेडशीट में यूज़ होते हैं, और कभी कभी क्लॉथ्स में भी यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे जो जियोमेट्रिकल शेप्स है, जो बॉर्डर यहाँ पे दिखाई दिए, जो बॉर्डर यहाँ पे दिखाई दिए, जस्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई विच शेप्स आर गिवन हियर। सो यहाँ पे कौन कौन से शेप है, सो जस्ट वी राइट इट डाउन हियर। कौन कौन से शेप जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है यहाँ पे सर्कल, देन स्क्वायर, देन सेमी सर्कल, देन हेक्सागन एंड सिंपल बॉर्डर। तो ये सब शेप यहाँ पे है। इज एनी शेप रिपीटिंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न? यस, यहाँ पे जो पैटर्न है वो रिपीट हो रही है बार बार। यू कैन सी हियर दिस पैटर्न इज कमिंग कंटिन्यूसली, वहाँ पे वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। आर द शेप मेड अप ऑफ, यहाँ पे जितने भी शेप है, दिस शेप मेड अप ऑफ कर्व्ड लाइन्स। आंसर कम्स यस, बिकॉज ऑफ जब आप सेमी सर्कल बनाते हो तो वो कर्व्ड लाइन होता है। व्हेनेवर यू ड्रॉ द सेमी सर्कल, दिस इज द कर्व्ड लाइन, तो कर्व्ड लाइन का यहाँ पे यूज हुआ है। देन स्ट्रेट लाइन, आंसर कम्स यस, बिकॉज ऑफ हेक्सागन इज देयर, द स्क्वायर इज देयर, तो वहाँ पे कौन सा यूज हुआ है, स्ट्रेट लाइन का भी यूज हुआ है। देन बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन्स आर यूजिंग हियर। Look at your clothes, your mother's saree, rugs and mats. Can you identify some patterns? Draw them in your notebook. So this is the homework for you. You have to draw the different patterns in your notebook. आपको different patterns देख के बनानी है, जो आपके घर पे या तो कर्टेन पे लगी है, या तो कर्टेन पे, या तो बेडशीट पे, या तो टॉवेल पे, या तो शॉल पे, या तो मम्मी की साड़ी पे। So these all are the ideas. So you can get ideas from there and मेक इट आउट इन योर बुक। आपकी बुक में आपको ड्रॉ करना है। नाउ आफ्टर दैट फ्लोर पैटर्न। फ्लोर पैटर्न क्या होता है? फ्लोर पैटर्न, यू ऑल नो फ्लोर पैटर्न। फ्लोर पैटर्न मीन्स व्हाट? फ्लोर पैटर्न यानी हम सबको पता है कि हमारे फ्लोर पे क्या लगी होती है। फ्लोर यानी ज़मीन, ज़मीन पे क्या लगा होता है? टाइल्स लगी होती है, टाइल्स। नाउ जो टाइल्स होती है उसकी साइज़ अलग अलग होती है, उसका शेप अलग अलग होता है, या तो कलर्स अलग अलग होते हैं। नाउ फ्लोर पैटर्न, फ्लोर पैटर्न किसको बोलते हैं? फ्लोर पैटर्न यानी आपको पता होगा कि किचन में हमारे घर पे जो प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर वहाँ पे टाइल्स लगी होती है। सो डिज़ाइंस वाली भी टाइल्स होती है, और उसको पैटर्न में भी अरेंज करते हैं कि जैसे एक ब्लॉक्स बनाते, ट्राइंगल बनाते, ब्लॉक्स बनाते। सो दिस ऑल आर द डिफरेंट पैटर्न। सो डिफरेंट पैटर्न्स है। हियर हैव यू एवर सीन अ फ्लोर विच हैज़ डिज़ाइंस? आपने कभी ऐसा फ्लोर देखा है कि जहाँ पे डिज़ाइंस है? डू यू नो हाउ दिस डिज़ाइंस आर मेड? वो कैसे बनाई जाती है? दिस डिज़ाइंस आर मेड बाय कवरिंग द फ्लोर कम्प्लीटली विद द स्मॉल टाइल्स दैट फिट इनटू ईच अदर विदाउट एनी गैप। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द शेप ऑफ दिस टाइल एंड सी हाउ इट फिट्स। लुक एट दिस, यहाँ पे जो आपको टाइल पैटर्न दिया है, यहाँ पे जो टाइल पैटर्न है, लुक एट दिस सिंपल टाइल। ये यहाँ पे एक एक पिक्चर दिया है अलग अलग। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो अरेंज किया है दिस टाइल फर्स्ट इन अ स्टैंडिंग मोड, देन स्लीपिंग मोड, देन स्टैंडिंग मोड, देन स्लीपिंग मोड, देन स्टैंडिंग मोड, देन स्लीपिंग मोड, लाइक दिस। सो आपको वो टाइल्स ऐसे अरेंज करनी है कि वहाँ पे नो ओवरलैप, यानी एक के ऊपर एक टाइल्स ना आ जाए, एंड देयर इज़ अ नो गेट बिटवीन देयर। वहाँ पे गेट भी होना चाहिए नहीं। लुक एट दिस, द नेक्स्ट वन, दिस इज अ हेक्सागन शेप। ये हेक्सागन शेप है। हेक्सागन शेप हैज 6 साइड्स। हेक्सागन को कितने एजेस होते हैं, कितने साइड्स होते हैं? हेक्सागन हैज 6 एजेस, या तो 6 साइड्स, वो दोनों सेम ही है, साइड और एजेस। सो हेक्सागन हैज 6 कॉर्नर्स एंड 6 एजेस। लुक एट दिस हेक्सागन, हाउ इट इज़ अरेंज्ड। ये कैसे अरेंज किया गया है? सो देर इज़ नो ओवरलैप, यानी एक टाइल के ऊपर दूसरी टाइल भी नहीं है, एंड देर आर नो गैप बिटवीन द 2 टाइल्स, यानी जो टाइल्स ऐसे अरेंज किए कि वहाँ पे गैप भी रहना चाहिए नहीं, लाइक दिस। सो दिस ऑल आर द टाइलिंग पैटर्न, दिस ऑल आर द टाइलिंग पैटर्न। ये फ्लोर पैटर्न पे जो हम ज़मीन पे करते हैं। Now the next is here, among the following can you match the tiles with the designs that they will match on the floor? Draw lines to match. यहाँ पे पैटर्न्स दिए एंड टाइल्स दिए। सो जस्ट वी हैव टू मैच लाइक दिस, कि जैसे यहाँ पे ये जो टाइल्स है वो किसके साथ मैच हो रही है? यहाँ पे अलग अलग है, सो बट ऑब्वियसली दिस वन, दिस मैच विद द दिस वन, एंड दिस हेक्सागन मैच विद दिस। सो हियर आपको यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दिया है लाइक दिस, कि यहाँ पे जो फ्लोर पैटर्न है, फ्लोर पैटर्न, and here are the simple tiles is given, so just match it out with there। आपको सिर्फ मैच करना है, this tile match with this,
दिस स्टाइल मैच विथ दिस स्टाइल मैच विथ दिस एंड दिस स्टाइल मैच विथ दिस। यानी यहाँ पे भी एक शेप बन रहा है कि जैसे वो अरेंज किया है उसमें। नाउ द नेक्स्ट वन, यू कैन ऑल्सो मेक योर ऑन टाइल्स एंड यूज देम टू मेक योर ऑन टाइलिंग पैटर्न। आप अपने हिसाब से भी ऐसी पैटर्न बना सकते हो, ऐसी टाइलिंग पैटर्न बना सकते हो कि वो उसको अरेंज करो सो इट लुक लाइक्स अ फ्लोर पैटर्न, तो वो फ्लोर पैटर्न ही बने। You will find some such tiles at the end of the book that you can cut out and trace and color. आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे लास्ट में कुछ यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं, उसमें से आप कट आउट करके उसमें ट्रेसिंग भी कर सकते हो। Complete the following tiling pattern. So this is a tiling pattern given here. Just you have to complete it and fill the color. और कलर फिल करना है, ये जो कलर है वही कलर्स यहाँ पे आप फिल करोगे। Now on the next page, number 3, complete this pattern. Compare it with the pattern on page number 70, which also uses 6 side shapes. What is the difference between the two? यानी यहाँ पे जो कुछ दिया है आपको थोड़ा सा अलग है। Look at this. Just you have to complete this tiling pattern. यहाँ पे ये tiling pattern complete करना है। But here are the two shapes given. एक hexagon है और एक है triangle. One is hexagon given and one is triangle given. On the page number 70 we are using only hexagon here. यहाँ पे हमने सिर्फ hexagon use किया था. You can see here. This is only the hexagon. Hexagon को ही ऐसे arrange किया था कि वो tiling pattern बन जाए. But on the page number 72 हमने यहाँ पे हेक्सागन भी यूज़ किया है एंड वी आर यूजिंग ट्राइंगल ऑल्सो। आप जैसे ये करोगे तो आपको क्या लगेगा कि हेक्सागन के आगे पीछे ट्राइंगल्स है, सब ऊपर नीचे आगे पीछे ट्राइंगल्स है, तो इट लुक्स लाइक अ स्टार, वो स्टार जैसा दिख रहा है। किससे दिख रहा है? स्टार जैसा। सो फिल द कलर हियर एंड कंप्लीट दिस स्टाइलिंग पैटर्न। सो टिल दैट अभी यहाँ तक ही रखते, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। आभार।